Hello everyone. Today we are going to start with the fourth unit, that is color light model. So in that first is the color model. So in that first point is properties of light. Okay, so see here, in properties of light is depend on the frequency and the wavelength of the light, right? So what is the frequency? Frequency of light can be measured in terms of like this: 10 raised to power 2, 10 raised to power 4, 10 raised to power 10, 10 raised to power minus 6. These are the different frequency of light that you can see on this spectrum, right? So each frequency value within the visible region of the electromagnetic spectrum corresponds to a distinct spectral color. So each and every frequency uh, every frequency represent the different color. So depending on that, it is divided into gamma, x-rays, ultraviolet rays, infrared rays, radio rays, and the frequency in terms of wavelength that is shown over there. Now what is electromagnetic spectrum? So the diagram shows the entire spectrum of the electromagnetic waves. So the scale at the bottom indicates corresponding objects that are equivalent to the wavelength scale. The atmosphere opacity determines what radiation reaches the Earth's surface. So see here, the different frequency represents different objects, right? So that is shown over here in this diagram. Okay, so now we'll see the properties of light. As we see, the light can be defined as, light can be described as a oscillating transverse electric and magnetic field propagating through surface. What is the meaning of that? Electric and magnetic surface are perpendicular to each other, and when the light is incident on it, it is just get oscillated. Okay, so that is nothing but the light. So now, when the white light is incident on an opaque object, some frequencies are reflected and some are observed. You might have learned this in your 12th standard in physics and all, and or in your स्कूल डेज. अगर लाइट कोई एक सरफेस पे, कोई एक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो क्या होती है? सम लाइट गेट्स एब्जॉर्ब्ड एंड सम आर गेट्स रिफ्लेक्टेड, राइट? सो द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट इन द reflected light determines the color of the object that we see. So what is the meaning of that? When the light is gets incident on any opaque object, and when it is get reflected, right? So it is reflected only one color and all other colors gets absorbed. So you can see in the figure as an example, एप्पल के ऊपर बहुत सारे लाइट्स के रेडिएशन पड़े डिफरेंट कलर्स, राइट? लेकिन उसमें से सभी कलर्स क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गए, लेकिन ओनली वन कलर्स गेट रिफ्लेक्टेड एंड दैट वी कैन ओनली सी थ्रू द आई, ओनली वन कलर, दैट इज रेड कलर. तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रिक्वेंसीज प्रेजेंट इन द रिफ्लेक्टेड राइट. जो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है और उससे जो रिफ्लेक्ट हो रही है, जो भी इंसिडेंट हो रही है ऑन द एप्पल एंड जो भी रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम दैट, उससे वो क्या डिनोट करती है? कलर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी थ्रू आवर आइज. ओके, तो उसे ही बोला जाता है डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी, और इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स वी कॉल्ड इट एज अ यू. ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. In the wave model or electromagnetic radiations, light can be described as oscillating travels electric and magnetic field propagating through space. Okay, so for each spectral color, rate of oscillation is equals to what? Frequency, right?
सो रेट ऑफ ऑसिलेशन मीन्स व्हाट, जब वेव कोई एक ओपैक सरफेस पे पड़ती है, ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, और उसमें से सम गेट्स एब्जॉर्ब्ड एंड सम गेट्स रिफ्लेक्टेड, उसे क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव। जिस वे से उसे रिफ्लेक्ट किया जाता है, दैट इज़ नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव। ओके, और उसे ही बोला जाता है रेट ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है। So the time between any two consecutive position on the wave that have same amplitude is equals to period of the wave. So दो अगर वेव्स हमने कंसीडर किए, दो वेव्स में का जो भी पोजीशन है, डिस्टेंस है बिटवीन टू वेव्स, स्टार्ट ऑफ वन वेव टू द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट वेव, उसे क्या बोला जाता है, पीरियड ऑफ दैट वेव और टाइम पीरियड ऑफ दैट वेव और एम्पलीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव। सो किसे बोला जाता है, द टाइम बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव पोजिशन ऑन द वेव दैट हैव सेम एम्पलीट्यूड। दो वेव की क्या है, एम्पलीट्यूड सेम है, मीन्स उसका जो भी यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है नीचे, रेड लाइन से नीचे जो भी वेव्स आई है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, मीन्स एक ही लाइन में है वो, राइट। तो उन दो वेव जो कि एक ही लाइन में है, एक ही पोजीशन से वो बिलोंग करती है, तो उसके बीच में का डिफरेंस मीन्स व्हाट, पीरियड ऑफ दैट वेव। ठीक है, उसे बोला जाता है सेम एम्पलीट्यूड वाली वेव। So the time between any two consecutive position on the wave that have same amplitude is equals to period of that wave, that is denoted by capital T. Okay, so period is nothing but the inverse of frequency. So इसीलिए T is equals to क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। ठीक है। So the distance travel from beginning of one oscillation टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ऑसिलेशन, उसे क्या बोला जाता है, वेवलेंथ। सो एक ऑसिलेशन मीन्स एक ऑसिलेशन से स्टार्ट होके दूसरे ऑसिलेशन के बिगिनिंग तक जो भी डिस्टेंस होगा उसे क्या बोला जाता है, वेवलेंथ बोला जाता है, राइट। सो दैट इज़ क्लियरली डिपिक्टेड इन द फिगर, राइट, व्हाट इज़ वेवलेंथ एंड व्हाट इज़ पीरियड, राइट। So the wavelength and frequency are inversely proportional to each other with the proportionality constant as the speed of light. So यहाँ पे period and wavelength frequency and wavelength क्या है, opposite to each other है, inverse to each other है, right। तो इसीलिए उसमें का जो भी constant है, speed of light का constant which is represented by c is equals to क्या हो जाएगा then, frequency multiplied by wavelength. So clear? Frequency rate of oscillation is defined by small f. Period of wave means two consecutive position at any distance, the time between any two consecutive position of the wave that have same amplitude, उसे बोला जाता है period, and distance from beginning of one oscillation to the beginning of next oscillation, उसे बोला जाता है wavelength। and उन दोनों का multiplication means frequency and wavelength are inverse to each other, so उस दोनों का multiplication is nothing but by which we can measure the speed of the light, so इसीलिए उसका constant क्या है, c। okay, now we'll see the characteristics of color. So first is the dominant frequency, which is nothing but the hue. The color we see, that is nothing but the dominant frequency, right। So red, green, purple, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जो कलर हमारे आँखों से देखा जाता है, मीन्स डार्क कलर जो है उसे हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी। नाउ ब्राइटनेस, नाउ व्हाट इज़ द ब्राइटनेस, द टोटल लाइट एनर्जी, हाउ ब्राइट इज़ द कलर, how bright are the lights illuminating the object, that is nothing but the brightness। मीन्स हम लोग बोलते हैं ना कि जितना कौन सा कलर उस ऑब्जेक्ट से बाहर निकलता है, that is what
डिपेंडिंग ऑन द लाइट एनर्जी, राइट। तो उसे उसका ब्राइटनेस बोलते हैं। जैसे हम लोग अगर मोबाइल भी लेते हैं तो मोबाइल का भी ब्राइटनेस हम लोग कम ज़्यादा करते हैं, राइट। सो ज़्यादा करते हैं मीन्स उसका जो भी रिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा मीन्स डार्क दिखाई देता है, राइट। या फिर अगर हम लोग उसका ब्राइटनेस कम करते हैं तो वो फेंट होते जाता है, राइट। So that is nothing but the brightness. Now next is the purity, that is saturation. So purity describes how close a light appears to be a pure spectral color, such as pink is less saturated than red. So purity क्या डिस्क्राइब करता है कि लाइट कितने क्लोज अपीयर किया जाता है टू अ प्योर स्पेक्ट्रल कलर। प्योर स्पेक्ट्रल कलर के कितने क्लोज लाइट अपीयर होता है, दैट डिस्क्राइब्स द प्योरिटी ऑफ द लाइट। जैसे कि पिंक इज़ लेस सैचुरेटेड देन रेड। जैसे कि अगर रेड कलर है विच इज़ द डार्क कलर, वो मोर सैचुरेटेड रहता है एज़ कम्पेयर टू द पिंक। पिंक इज़ व्हाट कि एकदम डार्क नहीं रहता वो आँखों के लिए, समवॉट लाइट कलर में जाता है वो, राइट। तो इसीलिए दैट इज़ लेस सैचुरेटेड देन द रेड कलर, राइट। सो प्योरिटी ऑफ द कलर कैसे डिफाइन किया जाता है, हाउ क्लोज द लाइट अपीयर्स टू बी टू अ प्योर स्पेक्ट्रल कलर। प्योर स्पेक्ट्रल कलर के कितने नज़दीक वो लाइट है उसके थ्रू उसकी प्योरिटी मेजर किया जाता है, दैट इज़ सैचुरेशन मेजर किया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू में सैचुरेशन का। क्लियर। सो क्रोमेटिसिटी रेफर्स टू द टू प्रॉपर्टीज, दैट इज प्योरिटी एंड ह्यू टुगेदर। नाउ नेक्स्ट इज द कलर मॉडल. सो कलर मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल मॉडल. सो कलर मॉडल को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल मॉडल बोलेंगे, जो कि डिस्क्राइब करेगा डिस्क्राइबिंग द वे कलर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टपल्स ऑफ नंबर्स टिपिकली एज 3 और 4 वैल्यूज़ और कलर्स कंपोनेंट्स. सो यहाँ पे उसे कलर मॉडल को क्या बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल मॉडल. तो उसमें क्या किया जाता है कि जैसे टपल्स रिप्रेजेंट द नंबर्स मीन्स जैसे हम लोग बोल सकते हैं RGB मीन्स 3 कलर्स हम लोग अगर लेते तो एक मॉडल बनेगा, दैट इज़ RGB मॉडल, राइट. देन YCM मॉडल, अगर CYM मॉडल, राइट. सो जैसे सियान कलर, येलो कलर एंड मैजेंडा कलर लेते हैं तो वो मॉडल बन जाएगा. सो ऐसे टपल्स जो है वेरियस कलर्स के, उसे कंबाइन करके वो क्या बनाए जाते हैं, 3 और मोर कलर्स मिलके एक मॉडल बनाया जाता है. क्लियर. That is nothing but the color model. So it is nothing but an abstract mathematical model. So any method for explaining the properties or behavior of color within some particular context is the color model. अगर कोई मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर एक्सप्लेनिंग द प्रॉपर्टीज और बिहेवियर ऑफ कलर विद इन सम पर्टिकुलर कंटेक्स्ट, उसे क्या बोला जाता है, कलर मॉडल बोला जाता है. क्लियर. नाउ कलर मॉडल. सो प्राइमरी कलर्स, देन कलर गैमट, complementary colors, these are nothing but the color models. So primary colors कैसे find out किया जाता है, that is the set of colors that can be combined to make a useful range of colors, that is nothing but the primary colors. जो भी set of colors combine किए जाते हैं to make use of range of यूज़फुल रेंज ऑफ कलर्स, उसे प्राइमरी कलर्स बोला जाता है, राइट. देन कलर गैमट. सो सेट ऑफ कलर्स दैट वी कैन प्रोड्यूस फ्रॉम प्राइमरी कलर्स इज नथिंग बट द कलर गैमट.
So what is color gamut? The set of colors that we use to produce the primary color, that is the color gamut. Now complementary colors, the pair of colors which when combined in the right proportion to produce a white. मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है कि दो कलर्स हम लोग कंबाइन कर रहे हैं प्रोपोर्शनली टू प्रोड्यूस द वाइट कलर. ठीक है. फॉर एग्जांपल इन RGB मॉडल रेड एंड सियान अगर हम लोग कंबाइन करते तो इट मे प्रोड्यूस द वाइट कलर. ग्रीन एंड मैजेंटा कंबाइन करते हैं तो वाइट होगा. ब्लू एंड येलो अगर कंबाइन करते हैं तो वाइट होगा. सो दैट इज़ नथिंग बट द व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री कलर. सो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है कि पेयर ऑफ कलर्स अगर हम लोग मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं टू प्रोड्यूस द वाइट कलर. ठीक है. So the no finite set of real primary colors can be combined to produce all possible visible colors. Next is the color model. So shades, tints and tones. ये एक्चुअली सिलेबस में नहीं है लेकिन हम लोग देख रहे हैं. दैट इज़ व्हाट इज शेड्स. शेड्स इज प्रोड्यूस्ड बाय डिमिंग a hue. मीन्स डिमिंग अ ह्यू मीन्स व्हाट. अगर हम लोग कोई भी डार्क कलर प्रोड्यूस करना है तो प्योर कलर लेंगे प्लस ब्लैक लेंगे, डिम करेंगे उसमें टू प्रोड्यूस द डार्क कलर. राइट. जैसे हम लोग डार्क ब्लू प्रोड्यूस करेंगे बाय कंसीडरिंग प्योर ब्लू प्लस ब्लैक. दिस इज़ व्हाट शेड. व्हाट इज टिंट. सो टिंट इज प्रोड्यूस्ड बाय लाइटनिंग अ ह्यू. Shade is produced by dimming a hue and tint is produced by lightening a hue. Means उसे light color दिया जाता है. right. So postal red color can be produced by using pure red plus white. मीन्स उसे लाइट कलर किया जाता है. अगर डार्क कलर करना है तो उसे डिमिंग बोलते हैं, मीन्स शेड बोलते हैं. एंड लाइट कलर करना है तो उसे टिंट बोलते हैं, दैट इज़ लाइटनिंग बोलते हैं. राइट. एंड टोन रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द कलरफुलनेस ऑफ अ ह्यू. ठीक है. एडिंग ग्रे और एडिंग ब्लैक एंड वाइट. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स गिवन ओवर हियर. द शेडिंग टेक्स अ ह्यू टूवर्ड्स ब्लैक. टिंटिंग टेक्स अ ह्यू टूवर्ड्स वाइट. शेडिंग कहाँ पे लेके जाता है ह्यू को? ब्लैक के तरफ. टिनिंग टेक्स द ह्यू टूवर्ड्स वाइट एंड टोन कवर्स द रेंज बिटवीन. क्लियर? Now there are two types of color models, that is additive and subtractive. Now what is the additive color model? So additive color model uses the light to display the color and subtractive model uses the ink to display the color. This is the main difference. Additive color uses the light to display color and subtractive model uses the ink to display a color. ठीक है. सो एडिटिव कलर कैसे निकाला जाता है? दैट इज़ मिक्सिंग बिगिन्स विद द ब्लैक and ends with the white. As more colors is added, the result is lighter and tends to white, used for computer display. So मिक्सिंग कहाँ से बिगिन होता है? ब्लैक से एंड एंड होता है वाइट के तरफ. इसीलिए इसमें जितने भी कलर हम लोग ऐड करते जाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? लाइटर कलर होगा एंड टेंड्स टूवर्ड्स द वाइट. राइट. इट इज़ यूज फॉर कंप्यूटर डिस्प्ले. So example, RGB color are light primaries and color are created with light. Okay. Now subtractive model में क्या होता है? It uses the ink to display color, right? So mixing begins, अभी यहाँ पे opposite होगा. White से start होगा and end होगा black पे. As one adds the color, the result gets darker and tends towards the black. Opposite होगा. जैसे हम लोग कलर्स ऐड करते जाएंगे वाइट में, वो डार्कर होते जाएगा, डार्क होते जाएगा एंड टेंड्स टू ब्लैक होगा. यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो. एंड इट इज़ यूज फॉर प्रिंटेड मटेरियल. क्लियर द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस टू. सो इट इज़ कॉल्ड सब्ट्रैक्टिव मॉडल
because its wavelength is less than sum of the wavelengths of its constituting colors. Example, CMYK color system is the color system used for printing. Okay. Now next, there are certain standard primaries and chromaticity diagram is given, which is nothing but the history of this color model. So this is nothing but the history of this color model, that this is an international standard for primary colors established in 1931. It allows all other colors to be defined as weighted sum of the 3 primary colors. All other colors डिफाइन किए जाते हैं by using the weighted sum of 3 primary colors. कौन से? RGB, right? So there are no real 3 colors that can be combined to give all possible colors. ऐसे कोई भी 3 colors नहीं है कि जो combine करने से सभी possible color मिलेंगे. Therefore the 3 standard primitives are selected. इसीलिए 3 standard primitives select किए गए हैं. They are defined mathematically with positive color matching functions. वो कैसे डिफाइन किए गए? विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव कलर मैचिंग फंक्शंस दैट स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ ईच प्राइमरी नीडेड टू डिस्क्राइब एनी स्पेक्ट्रल कलर. जो डिफाइन करेगा हमें कि कौन सा कलर प्रोड्यूस करने के लिए कौन से 3 कलर हमें यूज करने होंगे. प्राइमरी कलर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द स्पेक्ट्रल कलर. तो यहाँ पे गिवन है स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स and the chromaticity diagram. The color in the vicinity of 500 nanometer can be matched only but subtracting an amount of red light from a combination of blue and green light. So see here what it is doing. It is subtracting red light from the amount of green and blue light. So this is the color matching function. Okay. So there are certain standard primaries and chromaticity available, so that you can see. So here is an example, that is CIE model is given, that is chromaticity diagram is given. So to define the color in CIE model, provide weights for X, Y and Z primaries. सो एक्स वाई एंड जेड जो एक्सिस है उसमें सम वेट्स गिवन रहते हैं, जस्ट एज यूड फॉर RGB डिस्प्ले. सो यहाँ पे सम वैल्यूज़ गिवन है, जैसे ग्रीन कलर अगर कलर रेंज अगर वाई एक्सिस पे 0.7 लेते तो वो ग्रीन कलर होगा. देन ऐसे कुछ तो कलर्स मिक्सिंग करके वो कलर फाइंड आउट किए जाएंगे, जैसे वायलेट, पर्पल लाइन, रेड, येलो, स्पेक्ट्रल कलर, ग्रीन कलर, सियान, ब्लू, ऐसे. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कलर स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई में सेम कलर, दैट इज़ रेड रेड, ग्रीन ग्रीन, ब्लू ब्लू, ऐसे. ठीक है. सो द एक्स वाई एंड जेड फॉर्म अ 3-dimensional color volume. We can ignore the dimension of luminance by normalizing with the total lighting intensity, that is up to 1. So x plus y plus z is equals to 1. So x कलर अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग? x डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस जेड. y निकालना है तो y डिवाइडेड बाय तीनों कलर, राइट? सो लाइक दिस. सो सी हियर, उसे ही यहाँ पे मिक्सिंग किया गया है और उससे कुछ कलर मॉडल निकाले गए हैं. ठीक है. नाउ RGB मॉडल. सो सी हियर RGB मॉडल. So the red, green, blue color space is widely used throughout the computer graphics. This model is throughoutly used in the computer graphics. ठीक है. This is the additive color model. So see here, ये मॉडल वर्क कैसे करता है, इसके स्टेप्स क्या है वो देखो.
तो यूनिट क्यूब डिफाइंड ऑन RGB एक्सिस. सी हियर, यहाँ पे जो तीन एक्सिस है, दैट इज़ XYZ एक्सिस, उस पर रेड ग्रीन ब्लू एक्सिस करके उसे डिफाइन किया गया है. जैसे X एक्सिस पे रेड, Y एक्सिस पे ग्रीन एंड Z एक्सिस पे ब्लू. ठीक है, और उसके बीच में क्यूब ड्रॉ किया गया है. ठीक है, तो अभी वो ट्यूब कैसे ड्रॉ किया गया है. द ओरिजिन मीन्स ओरिजिन 0 0 0 से स्टार्ट किया गया, दैट रिप्रेजेंट्स द ब्लैक कलर. एंड डायगोनली अपोजिट वर्टेक्स, ये जो हम लोग देख रहे हैं क्यूब का डायगोनली अपोजिट वर्टेक्स, उसे क्या बोला गया है, 1 1 1, जो कि पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, इज़ अ वाइट कलर. ठीक है. So the vertices of the cube on the axis represents the primary color. What is the meaning of that? जो भी vertices on that particular axis है, जैसे vertex red on red axis represent that primary color. The green on green axis, the blue on blue vertex, the vertex on the blue axis represent the blue color, right? So ये क्या है, प्राइमरी कलर्स डिनोट करते हैं. ठीक है. एंड रिमेनिंग वर्टाइसेस आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर पॉइंट्स फॉर ईच ऑफ द प्राइमरी कलर. और बाकी के जो भी वर्टाइसेस है, दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री कलर है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे येलो, सियान एंड मैजेंटा, दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स फॉर दिस प्राइमरी कलर्स. ठीक है, क्लियर. तो शेड्स ऑफ द ग्रे आर रिप्रेजेंटेड अलोंग द मेन डायगोनल. नाउ सी हियर, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर फ्रॉम दिस प्राइमरी कलर्स कैसे निकाले गए, दैट इज गिवन ओवर हियर. सो ईच कलर पॉइंट विदिन द यूनिट क्यूब कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वेटेड वेक्टर सम of the primary colors using unit vectors, that is RGB. जैसे मैंने बोला कि ये जो प्राइमरी कलर्स से ही वेटेड वेक्टर सम निकाल के बाकी के तीन कलर्स, दैट इज़ येलो, सियान एंड मैजेंटा कलर्स रिप्रेजेंट किए गए हैं. ठीक है. तो वेयर RGB आर असाइंड वैल्यूज इन द रेंज फ्रॉम 0 to 1. फॉर एग्जाम्पल, magenta vertex is obtained by adding the maximum red and blue values to produce red and blue. इसीलिए red and blue के जगह पे 1 1 होगा, बाकी 0 होगा. to produce a which color, magenta color. so magenta color देखो 1 0 1. सेम अगर ग्रीन एंड ब्लू अगर निकाल लेते हैं तो क्या होगा, सियान कलर, और येलो के लिए रेड एंड ग्रीन. Okay. Next, opposite of this model, that is RGB model, is the this model CMY, that is what, cyan, magenta and yellow model, right? सो इस ये पूरा अपोजिट है. जैसे RGB में XYZ एक्सिस पे रेड ग्रीन ब्लू वैल्यूज़ हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, कलर्स रिप्रेजेंट करते थे. अभी यहाँ पे क्या है, CMY में सियान, मैजेंटा एंड येलो, ये हम लोग एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, मेन कलर्स हो गए, और इसके कॉम्बिनेशन से वो ब्लू, रेड एंड ग्रीन कलर फॉर्म हो गए. और यहाँ पे पूरा अपोजिट होगा. जैसे ये स्टार्ट कहाँ से, वो स्टार्ट कहाँ से होता था, ब्लैक से. ओरिजिन इज़ द ब्लैक एंड डायगोनल वर्टेक्स क्या रिप्रेजेंट करता था, उसका वाइट. तो यहाँ पे अभी उसका अलग होगा. मीन्स दिस इज़ द सब्सट्रैक्टिव मॉडल वी कैन से, कि जो कि प्रिंटर्स यूज़ करते प्रिंटिंग के लिए, हार्ड कॉपी डिवाइसेस के लिए. तो इट विल स्टार्ट विद द वाइट एंड एंड्स विद द ब्लैक. क्लियर. सो अ प्रिंटेड कलर दैट लुक्स रेड absorbs the other two components of G and B and reflects R. Thus the CMY coordinates are just the complementary of RGB coordinates. Clear. पूरा अपोजिट है. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, RGB is the which model,
सो यहाँ पे हमने देखे थे मॉडल्स. देर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडल्स, that is additive and subtractive. So RGB is the additive model and जो कि लाइट यूज़ किया जाता है टू डिस्प्ले द कलर, एंड CMY इज़ द सब्सट्रैक्टिव मॉडल जो कि प्रिंटर यूज़ करते हैं फॉर प्रिंटिंग पर्पस, जिसमें इंक यूज़ होता है. क्लियर? सो दिस इज़ रिगार्डिंग द कलर मॉडल. ओके, सो बाकी के जो भी कलर मॉडल है दैट इज़ this one, YIQ model. Now what is this YIQ model? So it is used for US TV broadcasting. So this model was designed to separate chromiums I and Q from lumions. ये मॉडल किसके लिए यूज़ किया गया है? डिज़ाइन to separate the chromiums, that is I and Q, from the lumions, that is Y. ठीक है. This was a requirement in the early days of color television when black and white sets still were expected to pick up and display what were originally color pictures. The Y channel contains luminance information that is sufficient for black and white television sets, while the Q channel carried the color information. See here, what is the meaning of this? कि पहले क्या होता था, ब्लैक एंड वाइट चैनल दिखते थे, राइट. लेकिन उसका अगर मुझे कलर टेलीविज़न मॉडल बनाना था तो उसमें से कुछ ओरिजिनल कलर्स के पिक्चर्स हमें डिस्प्ले करने होंगे, राइट. तो वाई चैनल क्या करता था कि रेड ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न सेट्स को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन जो क्यू चैनल है वो कलर इन्फॉर्मेशन कैरी करता था. क्लियर? The color television set would text these three channels, that is Y and Q, and map the information black to red back to RGB. इसको फिर से, ये क्या थे? डिफरेंट चैनल्स थे YIQ. जैसे Y किसके लिए यूज़ होता है? रेड एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट सेट्स को डिस्प्ले करने के लिए, मीन्स ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स डिस्प्ले करने के लिए. एंड Y चैनल किसके लिए था? सॉरी, Q चैनल किसके लिए था? उसमें कलर इन्फॉर्मेशन कैरी रहती थी, राइट. तो इसीलिए ये क्या रिप्रेजेंट करता है? The color television set would take these three channels, that is Y and Q, and map the information back to the RGB levels for display on the screen. So फिर से वो उसके साथ मैप करता है RGB के साथ to display on the screen. The advantages of this model is that more bandwidth can be assigned to the Y component because the human visual system is more sensitive to changes to luminance than changes to the saturation. See here, जब ह्यूमन हम लोग हम ह्यूमन मीन्स हम लोग, राइट. जब हम लोग देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, तो हम लोगों की जो आईज़ है, राइट, वो क्या है? luminance that to changes in hue, that is saturation में जो changes आते हैं उसको ज़्यादा एब्जॉर्व करने की कोशिश करता है as compare to the luminance of the white. मीन्स ब्लैक एंड वाइट में जो चेंजेस होते हैं उससे जो भी कलर इसमें चेंजेस होते हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली हमारी आइज़ क्या करती है, देख सकती है, राइट. जैसे वाई कंपोनेंट किसके लिए था? हमारा ब्लैक एंड वाइट के लिए था, राइट, वाई चैनल. तो ब्लैक एंड वाइट में जो भी चेंजेस होते हैं वो जितने ड्रास्टिकली एब्जॉर्व किए जाते हैं उससे ज़्यादा जो भी कलर में से हमें चेंजेस ज़्यादा समझ में आते हैं. ब्लैक एंड वाइट से चेंजेस हमें कलर सिस्टम में ज़्यादा समझ में आते हैं. दैट इज़ व्हाट द एडवांटेजेस ऑफ दिस मॉडल इज़ दैट more bandwidth can be assigned to the Y component luminance because
The human visual system is more sensitive to changes in luminance than to the changes in hue or saturation. This is how to convert from RGB to IIQ model it's given, and this is how to convert from YIQ to RGB values is given. Some values are given to convert YIQ to the RGB, and same opposite values are given to convert it back to the RGB. Okay, so next is the HSV model. So see here YIQ मॉडल किस लिए दिया गया था कि जैसे पहले ज़माने में सिर्फ ब्लैक एंड वाइट टीवी यूज़ करते थे, उसमें कलर मॉडल अगर मुझे डालना है जो कि क्यू चैनल के इसमें अवेलेबल था, उसे कंबाइन करने के लिए ब्लैक एंड वाइट मॉडल एंड कलर मॉडल कंबाइन करके लोगों को दिखाने के लिए YIQ मॉडल यूज़ होता था ना। उसके जो भी कलर 3 चैनल्स है YIQ के, वो मैप किए जाते थे फिर RGB के साथ टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, सो दैट इट विल लुक लाइक अ कलर टीवी. ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट द YIQ मॉडल. नाउ HSV मॉडल. व्हाट इज़ HSV मॉडल? That is, every color is represented by 3 components, that is hue, saturation and value. ठीक है, हर एक कलर 3 कंपोनेंट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, दैट इज़ ह्यू, सैचुरेशन एंड वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पे देखो उन्होंने रिप्रेजेंट किया है. दिस इज़ द ह्यू, राइट, एंड दिस इज़ द सैचुरेशन. सैचुरेशन मीन्स कलर के इसमें डिफरेंस, दैट इज़ नथिंग बट द सैचुरेशन. ह्यू मीन्स यू कैन से द डिस्टेंस. हमने देखा था ह्यू क्या था, जो भी हमारे आँखों से जो भी कलर हमें दिखाई देता है, दैट इज़ नथिंग बट द ह्यू. जैसे एक ओपेक सरफेस पे जब लाइट गिरता है तो दैट लाइट कंटेन्स द RGB कलर्स और डिफरेंट कलर्स, बट जब वो उस सरफेस से रिफ्लेक्ट करता है, सम आर गेट एब्जॉर्ब एंड सम आर गेट रिफ्लेक्टेड, राइट. सो जो रिफ्लेक्ट किया जाता है एक कलर, वही हमारे आँखों से दिखाई देता है. जैसे वहाँ पे हमने देखा है एग्जाम्पल एप्पल का. ठीक है, दैट इज़ नथिंग बट द ह्यू, जो हमारे आँखों से दिखाई देता है, दैट इज़ द ह्यू. एंड सैचुरेशन इज़ व्हाट, कि उसके बीच में का जो भी डिफरेंस है लाइट एंड डार्क इसमें का, दैट इज़ नथिंग बट द सैचुरेशन. एंड उसके इसमें जो भी डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ नथिंग बट द वैल्यू. फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द लाइट टू द, जहाँ से लाइट पड़नी स्टार्ट होती है, वहाँ से जिस सरफेस पे, जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, उसमें का डिस्टेंस, दैट इज़ नथिंग बट द वैल्यू. क्लियर? तो सी हियर, यहाँ पे इंक्रीजिंग ह्यू में गिवन है सियान, ब्लू, मैजेंडा, रेड, येलो, ग्रीन. इसके वैल्यूज़ गिवन है, ह्यू वैल्यूज़ गिवन है, राइट. इंक्रीजिंग सैचुरेशन, मूव अवे फ्रॉम द एक्सेस. ठीक है, इंक्रीजिंग वैल्यू मूव्स टूवर्ड्स लाइटर कलर. क्लियर? दिस इज द HSV मॉडल. This is also HSV model, that is hue of the color refers to which pure color eye reassembles all tints, tones and shade of the red have the same hue. Simply the color we see. जो कलर हम लोग देखते हैं, जो हमने बोला था, दैट इज़ नथिंग बट द ह्यू, राइट. तो उसके बीच में का जो भी डिफरेंस है वो यहाँ पे बताया गया है. तो दिस इज़ व्हाट फॉर HSV मॉडल फॉर ह्यू, दैट इज़ कलर कैसे हम लोग देखते हैं, कैसे रिफ्लेक्ट होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, और कौन सा कलर हम लोग देखते हैं, दैट इज़ गिवन हियर. देन HSV मॉडल फॉर सैचुरेशन. सो द कलर डिस्क्राइब हाउ वाइट द कलर इज़ और द अमाउंट ऑफ वाइट एडेड टू द कलर. अ प्योर रेड इज़ फुल्ली सैचुरेटेड, मीन्स नो वाइट एडेड, right. So that is nothing but the saturation. Next is nothing but the value, also called its lightness, describes how dark the color is.
वैल्यू क्या डिस्क्राइब करता है, कितना डार्क है कलर वो. द वैल्यू ऑफ 0 इज ब्लैक विथ इंक्रीजिंग lightness moving away from the black. मीन्स सॉरी, ज़ीरो वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक. और जैसे ही हम लोग उससे अवे जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा. सो दिस इज द डबल कोन रिप्रेजेंटेशन. पैरामीटर्स आर यू, लाइटनेस एंड सैचुरेशन. Okay, now today we are going to stop over here.